اچھا جی، میں آج کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ وداؤٹ مہنگے کلینر اور گھر میں بنائے ہوئے کلینر کے بغیر اپنے فرنیچر کو کس طرح سے نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھرا کر سکتے ہیں اور بالکل شائن. کیونکہ اکثر جو ہمارے ڈیکو پینٹ فرنیچر ہوتے ہیں نا، ان پہ ہم پانی وغیرہ سے اگر اور ویسے کلینر وغیرہ سے اگر ان کی صفائی کریں تو ان کی وہ جو کلر وغیرہ نا اترنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تو میری بہن نے مجھے ایڈوائز دی کہ جس طرح سے آپ شادی سے پہلے گھر کے فرنیچر کو صاف کرتی تھی، اسی طرح سے بالکل آپ نے اپنے فرنیچر کو بھی اسی طرح سے صاف کرنا ہے اور تمہارا فرنیچر نا بالکل شائننگ اور چمکدار ہو جائے گا. اور جب میں نے ایسے کر کے دیکھا تو میری آنکھیں کھلی رہی. اچھا، یہ میں شادی سے پہلے جب امی کے گھر میں ہوتی تھی تو ہم اپنے فرنیچر کو اسی طرح سے صاف کرتی تھی، لیکن پھر جدید ایڈوانس چیزیں آ جاتی ہیں، ان کو ہم یوز کرتے ہیں اور انہیں کی عادی ہوتی ہے اور پرانی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نا ہمیں بہت سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اور جن کی وجہ سے نا ہمیں بہت ہی مشکل وقت دیکھنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دل دکھا جاتی ہیں. اسی طرح سے اپنی چیزوں کو دیکھنے سے، اپنی چیزوں کو رکھنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے نا صاف ستھرا، اتنی کسی کو نہیں. چاہے جو جتنا بھی بولے، جتنا بھی کہے، تو ان کی عادت ہوتی ہے جو کھلاتے ہیں وہ بولتے ہیں. وقت کسی کا محتاج نہیں رہتا. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ جو بالکل غریب سی حالت میں ہوتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے اتنی ترقی کر جاتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے کہ انہوں نے کیا کر دیا. تو جن کے پاس آج ہے تو ضروری نہیں کہ کل ان کے پاس وہی رہے. جو آج ہوتا ہے کل نہیں ہوتا، جو کل ہوتا ہے وہ آج ہی نہیں رہتا. آج نہیں ہے تو کل ضرور اللہ میاں ہمیں بھی دے گا اور ہم بھی اپنے جو اخراجات ہیں خود اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو اس کے لیے نا ہمیں چند پوائنٹس نوٹ کرنے ہوتے ہیں، جس کے لیے نا جو سیونگ کا پوائنٹس ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہے. مشکل وقت میں ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. جب آپ کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی آپ کو دیتا ہے تو 100 بات پہ گنواتا ہے. وہ نا فنگر ٹپس پہ لکھ کے آپ کو باتیں جتلاتے ہیں کہ ہم نے اتنا آپ پہ لگایا ہے، اتنا آپ کو کھلایا. چاہے اس کے آگے آپ کچھ نہ، چاہے آپ بھوکے بیٹھے ہوں، لیکن وہ آپ پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو وقت کسی کا محتاج نہیں ہوتا. آج ان کا وقت ہے تو کل ہمارا آئے. تو میری بہنیں ان کے لیے ان چیزوں کے لیے نا چند ایسے پوائنٹس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کی زندگی بدل دیں گے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں. اور یہاں میں دیکھیں سرسوں کا سمپل سا میں نے آئل لیا ہے اور اس کو میں نے نا ایسے کاٹن کے کپڑے یا ململ کا کپڑا آپ کے پاس جو بھی ہو نا اس پہ لگا کے یہ آپ اپنے فرنیچر پہ اس طرح سے لگانا شروع کر دیں اور جہاں سے داغ دھبے اور وہاں سے رگڑتی جائیں اور فرنیچر کو صاف کرتے جائیں. اور کوشش یہی کرنی ہے اپنے جو مرر وغیرہ ہے نا ان کو آپ نے بالکل آئل نہیں لگانا. آپ کا جو فرنیچر ہے نا بالکل شائننگ اور چمکدار ہو جائے گا. میں نے نا بہت ہی کم قیمت میں اور گھر کی ہی ٹوٹکے سے اور گھر کی انگریڈینٹ سے ہی ہم نے اپنے جو فرنیچر ہے نا اس کو نیٹ اینڈ کلین اور صاف کر دی. اور یہاں میرا بیٹا مجھے مسلسل تنگ کر رہا ہے اور ایک منٹ اس نے مجھے سانس نہیں لینے. جب میں ویڈیو ایڈٹ کرنے بیٹھی تو میں اسے پوری میں نے کوشش کی یہ کم آئے، لیکن پھر بھی بہت آئی. اتنا مجھے اس نے تنگ کیا، کبھی موبائل اٹھا دے، کبھی میں بیڈ پہ چڑھ جائے، کبھی مجھے چھیڑ جائے. اور اتنا اس نے تنگ کیا ایسے کہ آپ نے میں اسے اشارے کر رہی تھی کہ بیٹا نہ کرو مجھے کام کرنے دو. لیکن جو میرا 5 منٹ کا کام تھا نا اس نے تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ لگوا دیا، کیونکہ اسے بھی دیکھنا پڑ رہا تھا اور مجھے اور کام بھی کرنا پڑ رہا تھا. تو بہت ہی مشکل ہو رہی تھی مجھے کام کرنے. تو آپ کے بچے بھی آپ کو اسی طرح سے تنگ کرتے ہیں؟ میرا بیٹا تو بہت ہی شرارتی ہے. بیٹی میری ٹیوشن گئی ہوئی تھی، میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. چلو میں نے کہا گھر کے کام اچھی طرح سے جلدی سے فٹافٹ سے نپٹا لوں. پر یہ سویا نہیں ہے. پہلے تو سویا رہتا ہے یا دادوں کے پاس چلا جاتا ہے اور میں کام کر لیتی ہوں، لیکن آج اس نے مجھے اتنا تنگ کیا بس دیکھ لیں. بچوں کے ساتھ جو مائیں ہوتی ہیں نا اپنا کام کیسے مینج کرتی ہیں، یہ طریقے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ انہیں بھی دیکھنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے. یہ گڈا اس کا جو ہرن پڑی تھی نا تو اس کو بھی میں نے کہا چلو تمہیں بھی صاف کروں. اور دیکھیں یہ میں نے ٹیبل وغیرہ یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے نا، تو فرنیچر نا لکڑی کا بہت اچھی طرح سے یہ صاف ہوتا ہے. تو آپ بھی اسی طرح سے سرسوں کا آئل لیں اور اسے اپنے فرنیچر کو صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین اور شائننگ کریں. بالکل چمکدار سا آپ کا فرنیچر ہوگا. اور میں نے اپنے فرنیچر کی ہر ایک چیز کو نا اچھی طرح سے صاف. اچھا، آج میں آپ سے نا بہت اہم اور خاص بات یہ کرنے لگی ہوں کہ کسی سے نا مانگ کے کبھی نہ کھائیں. تھوڑا
थोड़ा खा लें, अपना खा लें, किसी का दिया हुआ ना टुकड़ा ना खाएं। जब आप उनका टुकड़ा लेके खाएंगे ना तो आपको 100 बार सुनाएंगे, हर आपके उठते बैठते खाते पीते हर उसमें आपको सुनाएंगे कि हमने आपको दिया। चाहे आप भूखे भी बैठे होंगे ना फिर भी वो आपको कहेंगे कि आपने उनसे चवन्नी ली होगी तो आपको कहेंगे हमने तो 100 रुपया लिया है। और कितना फर्क होता है। तो ये बार बार चीजें ना जतलाना, बार बार करना, तो वक्त किसी का मुताज नहीं होता। आज अगर ऐसा को आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े बल्कि वो आपके पास है, और वक्त किसी का मुताज नहीं होते। देखते ही देखते बादशाहों के जो महल होते ना वो भी गिरते देखे हैं, ठीक है ना। जो हिस्ट्री है ना वो यही बताती है कि बादशाहों के महल भी गिर जाते हैं और झोंपड़ी में रहने वाला भी अल्लाह चाहे तो उसको रंग लगा दे, उसकी कदर कीमत बढ़ा दे। तो ये अल्लाह ताला के हाथ है कि किस्मत कब बनती है और कब बिगड़ती है। तो उसके लिए आपको ना चंद अहम पॉइंट्स नोट करने होंगे जो आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा करें। जब आप के पास कुछ नहीं होता ना तो लोग आपको ना ज़ीलो ख्वार करके रख देते। तो आने वाले वक्त के लिए ना कुछ आपको सेव करना चाहिए। अगर आप कोई कारोबार करते हैं, जब उसमें आप सेविंग रखेंगे, कारोबार को निखारेंगे, तो वक्त के साथ साथ ना आप में भी अक्ल आएगी। कुछ घाटे होते हैं, कुछ मुनाफे होते हैं। जब घाटा आता है ना, कारोबार में नुकसान होता है, तो उससे ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अक्सर लोग मैंने देखा है जब उन्हें नुकसान होता है ना तो वो काम, इतनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने लगाई होती है, लेकिन जब थोड़ा सा भी नुकसान होता है ना तो वो छोड़ छड़ा के घर बैठ जाते हैं और दूसरों के मुताज हो जाते हैं। इसी तरह से मुस्तकिल मिजाजी से चाहे नुकसान एक महीना नुकसान होगा, दूसरा महीना नुकसान होगा, लेकिन चौथे महीने ना आप अपने कारोबार को समझ जाएंगे, उसको करने का तरीका आपको आ जाएगा, वो किस तरह से बढ़ता है ये आपको आ जाएगा। जब आप मार्केट में घुसते हैं तो ऐसा ऐसा ना आपकी हर चीज सामने आ जाती है। और यहाँ मेरी जो कर्टन्स थे वो भी, जो पाइप था ना वो भी नीचे गिर गया, और आपको पता नहीं इतनी ज्यादा तेज धूप हो जाती है। और ये 7:30 बजे का टाइम था और शदीद किस्म की कोई धूप निकली और देखते ही देखते ना ऐसे सूरज सर पे आ जाता है और शदीद किस्म की और गर्मी और हवस भी आज आपको पता है ना बहुत हो रही थी। यहाँ मैं नमाज पढ़ के मैंने अपनी जाए नमाज यही रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में भी हमने नमाज पढ़नी होती तो मैं अपने रूम में ही ज्यादातर रहती हूँ, तो इधर ही मैंने लपेट के रख दी, क्योंकि मैं अपने बेडरूम में ही नमाज पढ़ती हूँ। तो अगर आप 100 रुपया कमाते हैं, उसमें से 10 रुपया अपनी सेविंग के लिए रखते रहेंगे ना, तो वो आप कामयाबी के ना आपको वो मंजिलें तय करवा देगा। वही 100 रुपया जो आपको ना किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। मुश्किल वक्त में अगर आपके पास 4 रुपए भी होंगे ना, अगर उसमें से 1 रुपया आप खा लेंगे ना, तो किसी, मतलब कहने का मकसद मेरा ये है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मजबूरी के टाइम अगर किसी के आगे हाथ फैलाते हैं ना, अगर वो आपको 1 रुपया देते हैं तो 10 दफा गिनवाते हैं, हमने आपको 1 रुपया दिया, वो 1 रुपया नहीं था, वो 100 रुपया था, और 100 से बढ़ के ना वो 500 बन गया था, और 5 से बढ़ के ना वो 5 लाख तक तो हो जाता है ना। बड़े बड़ों का जो किरदार होता है ना वो सामने रख देते हैं। वो कहते हैं टक्के की हांडी जाती है और कुत्ते की जो जात होती है ना वो पहचानी जाती है। होता ना वो सामने तभी आता है जब आप पे मुश्किल वक्त होता है, ठीक है ना। बार बार आपको घर से निकालने की कोशिश करता है, बार बार आपको जलील करने की कोशिश करता है। जहां आपको खुशियां मिलनी चाहिए, जहां आपका सुकून बर्बाद किया जाता है, वहीं से आपको जिल्लत रसवा किए जाते हैं। लेकिन अल्लाह मियां आपको इतनी इज्जत और इतना अहमियत देता है, इतनी कदर कीमत देता है आपके सब्र की, कि आप देख के हैरान रह जाते हैं। और ये जरूर मिलता है, आपके आंसू, आपके दुख किसी के आगे अगर आप बार बार उन्हें कहेंगे कि आप हमें कह रहे हैं, ये आप हमें सुना रहे हैं, तो किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। आपकी चुप्पी ही आपका हथियार है। तो अपने लिए कुछ दायरे और कुछ जो चीजें होती है ना वो मैनेज करना सीखें, और अपने आप के अंदर ना एक बाउंड्री बनाना सीखें कि हमने इस बाउंड्री को पार नहीं करना। लोगों की मुंह है, लोगों ने बातें करनी, और जिस किसी का देखें मारते हुए का हाथ तो हम पकड़ सकते हैं, बोलते हुए की जुबान तो नहीं पकड़ सकते। जो जितना जिसका ज़र्फ होता है ना वो आपको उतना ज़र्फ दिखाता है, वो मजबूर होता है। देखें वो नहीं चाहता कि आप सुकून से जिंदगी गुजारें, आपकी और आपके हस्बैंड के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो या हो, चाहे ना भी हो ना, तो लोग आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी नहीं करते कि आप वो पुरानी
पुरानी बातें दोहराते हैं कि किस तरह से ये हमारे घर में आई हैं और किस तरह से हमने इसे दबाने की कोशिश की है। लेकिन ना कहते हैं इज्जत को इज्जत होती है, तो जब आपने उन्हें बहुत इज्जत दी होती है लेकिन आपको वो इज्जत नहीं मिलती, वो समझते हैं कि ये इज्जत ये डिजर्व नहीं करती, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ हर कोई हो जाता है, कुछ नहीं है, भूखे बैठ जाएंगे, कोई नहीं है, अल्लाह मियाँ देने वाला है, अल्लाह मियाँ खिलाने वाला है। तो किसी के आगे ना झुकने से इंसान कोई बड़ा नहीं बन जाता, ठीक है ना, कोई जितना भी बोल ले। तो वक्त के साथ साथ ना हर चीज को अपने आप पे हैवी ना करे। कोई नहीं है प्याज से खा ले, कोई नहीं है पानी से खा ले, लेकिन अल्लाह मियाँ हर चीज देख रहा है। जो आपके नसीब में है, जो अल्लाह मियाँ ने आपके नसीब में रखा हुआ है, वही आपको उसने अता करना है। जो निवाला आपके नसीब में है वो कोई इंसान भी आपसे नहीं खींच सकता। चाहे आपको आपके लिए आलू बने हों और वो दूसरे लोग सीख कबाब मुर्गे चरगे जो भी खा रहे हों, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं, कोई नहीं सब्र है। अल्लाह मियाँ सब कुछ देख रहा है, अल्लाह मियाँ सबको देने वाला है। अल्लाह मियाँ उनको भी जो पत्थर में कीड़े होते हैं उनके लिए क्या होता है, अल्लाह मियाँ रिस्क जोड़ देता है। अच्छा, मेरी अम्मी के मोहल्ले में ना एक तंदूर वाला था, वो रोटियां लगाता था, वो सारी रोटियां उसकी पक जाती थी, लेकिन ना एक तंदूर की एक जगह थी जहां से ना रोटी कच्ची निकलती थी। तंदूरों में ना आपको पता है कि 5 से 6 रोटियां लग जाती थी, तो उस तंदूर में सारी रोटी पक्की लगती थी, लेकिन एक रोटी वो जहां लगाता था ना, लेकिन थोड़ी सी जगह ऐसी रहती थी कि हमेशा से कच्ची रहती थी। लेकिन उसके तजस्सुस ने ना उसे मजबूर कर दिया कि मेरी रोटी ये कच्ची क्यों रहती है। एक दिन उसने ना पूरा, ये रियलिटी है और ये हकीकत है, ये हमारे मोहल्ले में ही ऐसा हुआ। अच्छा, उसने तंदूर खोला तो उसमें ना एक कीड़ा था और एक कीड़े के साथ ना छोटी सी बेल भी लगी हुई थी ग्रीन कलर की, जो उसे यानी कि अल्लाह मियाँ उसे वहां भी खाने पीने की चीजें मुहैया कर रहा था। तब तक तंदूर जहर, आपको पता है इतने बड़े तंदूर में जो बालन डालते हैं वो भी अपने तरफ से ना कितना बड़ा होता है और कहाँ तक उसकी तपिश जा रही होती है। और ये हमारे घर के ना थोड़ी से ही फासले पे लगा हुआ था जहाँ से हम ना रोटियां लगवाते थे। तो अम्मी ने जब आके वाकया सुनाया तो हम खुद भी हैरान हो गए कि अल्लाह में पाक ना कहाँ कहाँ से किसको कहाँ कहाँ से रिस्क देता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, जो नसीब में होता है वही आपको मिलता है। जब उस तपते तंदूर में भी अल्लाह मियाँ ने उस कीड़े के लिए रिस्क रखा था, तो हम तो इंसान है, तो हमारे से तो वो कितना प्यार करता है, तो हमें कहाँ कहाँ से नवाजता है। बस यही है कि उसकी थोड़ी सी कदर करनी चाहिए। वो हम उसकी कदर करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, तो वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता छोड़े। अगर दूसरों पे तवक्कल और भरोसे पे रहना तो जिंदगी नहीं गुजरती। अल्लाह मियाँ पे अगर हम तवक्कल भरोसा उम्मीद रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं से हमारा वसीला जरूर बन जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो लगता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मुझे प्लीज सपोर्ट भी करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरे हालात बेहतर हो, मेरी ये जिंदगी खुशहाल हो। और यहाँ लास्ट में मैं कपड़े प्रेस कर रहे थे, ये शाम का टाइम था और ये व्लॉग ना मैंने पूरे दिन में बनाया। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, जैसे मैं रूम की सफाई करके फारिग हुई ना, तो अभी 8:30 का ही टाइम था। मेरी तबीयत इतनी खराब हुई, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी है पता नहीं लगता, एकदम से मैं ठीक होती हूँ और एकदम से तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर रेस्ट किया, बर्तन वगैरह फिर धोए, फिर मैं व्लॉग्स नहीं बना सकी, ठीक है ना। तो फिर बाद में 4 साढ़े 4 बजे के या 5 बजे उठ के फिर मैंने जो काम थे बाकी